बोले सोनिया जिंदाबाद शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते हैं। एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते हैं। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटकर विद्या सीखे बगैर भी वापस आया करते हैं। और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट बनाए हैं, संगीन बनाए हैं, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना दोस्त अमित अरोड़ा हिमाचल वाला में। आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मेरे बहुत ही बेहतरीन अजीज दोस्त अवेलेबल है जिन्होंने मुझे राह दिखाई कि भाई अगर आज संडे है और आपको अगर कोई वीलॉग क्रिएट करना है तो क्यों ना शहीद भगत सिंह के घर का एक वीडियो क्रिएट किया जाए। और हम मेरे अगर आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें फन फ्रोलिक मस्ती एंड डांस आपको हमेशा देखने को मिलेगा। सब जो प्रीवियस पार्ट 1 जो वीडियो हमने क्रिएट किया था उसमें आप देखेंगे म्यूजियम का सारा वीडियो हमने आपको बताया, उसमें हम सब ने पार्टिसिपेट भी किया। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द होम ऑफ शहीद भगत सिंह और मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ऑब्वियसली पिछले वीडियोज़ में मैंने देखा मेरे सभी दोस्त जितने भी हैं वो भावुक हो चुके थे और जिस फन और म्यूज़िक और मस्ती के लिए हमारा वीडियो जाना जाता है, हम थोड़ा सा हटके थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे उस वीडियोस को क्रिएट करते हुए। और आज भी अगर मेरे दोस्तों के चेहरों पे अगर मुस्कान देखे तो मुस्कान देखने को कम मिल रही है, बिकॉज भगत सिंह आपस में एक ऐसा नाम है जिसने एक क्रांति पूरे इंटायर इंडिया इंटायर वर्ल्ड में क्रिएट की थी। तो आगे बढ़ने से पहले हम जोरदार एक बार भगत सिंह का नारा लगाते हुए, शबद जी इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं शहीद भगत सिंह पार्क ਤੋਂ बोल रहा क्योंकि शहीद भगत सिंह ਦੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਦਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਰਾਏ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਣਾ ਗਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹਨ ਜੋ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਬਾਬੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ, ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਆ। ਗੋਰਾ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਟੋਪੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆ ਕਾਮਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ 3000 ਰੁਪਈਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਉਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਹੀ ਜੰਮੂਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਆ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੱਖਿਆ ਜਾਂ ਗੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੀਜਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 5 ਨੰਬਰ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਇਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਲਕੱਤੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਡੀਅਰ ਵੀਅਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਟਕਰ ਕਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗਾ ये भगत सिंह जी का प्रवेश द्वार है और अब हम बढ़ रहे हैं अंदर की ओर जहाँ पे मेरे और भी जो सहयोगी हैं वो मेरे साथ देंगे और बहुत ही भावुक दृश्य इस समय ये सभी अगर आप देखते हैं ये देखिए आपको एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ शहीद भगत सिंह आपको दिखाने हम लोग जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको एंसेस्टर हाउस ऑफ भगत सिंह जो आपको बिल्कुल पसंद आएगा आपके रोंकड़े खड़े हो जाएंगे मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ इस समय अभी हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर और मैं आपको मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि हम लोग चल रहे हैं अभी अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये एक गेट लगा है जो बिल्कुल लॉक है और इसके अंदर अगर आप दिखाएंगे माय डियर फ्रेंड तो एक चक्की आपको देखने को मिल रही है राइट इस चक्की पे शहीद भगत सिंह के जो माता जी थे वो धान पीसते थे आटा पीसते थे और अपने घर का जो खाना है वो बनाते थे या चपाती बनाते थे ठीक है तो रोटियां जो थी वो यहाँ पे बनती है आज अगर आप देखेंगे सारा जो हाउस है ये एंसेस्टर हाउस है ये ईंटें अगर आपको देखने को मिलती हैं ये शहीद भगत सिंह के अपने बर्थ के टाइम की ये ईंटें हैं और आज भी वैसे अवेलेबल हैं ठीक है जी अब हम बात करते हैं दूसरे इनका जो दूसरा कमरा है दूसरा जो रूम है भगत सिंह का अंदर मैं कहता हूँ कि जूम करके दिखाइए मुझे मत दिखाइए आप प्लीज अंदर दिखाइए अंदर उनके सारे बर्तन अवेलेबल हैं लालटेन अवेलेबल है स्त्री है उनके जो गिलासेस हैं वो अवेलेबल हैं स्टील के गिलास अवेलेबल है आयरन अवेलेबल है जिसको स्त्री बोलते हैं हम लोग उसके बाद उनका जो लालटेन है वो अवेलेबल है पुरानी उनकी कई ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जो आज की डेट में आपको देखने को नहीं मिलेंगी सिर्फ आपको भगत सिंह के दूसरे जो रूम है उस पर अवेलेबल मिलेंगे जो दूसरा कमरा है ये एक छोटा सा ताला जो सबसे पुराना है
देखने में कितना प्यारा लग रहा है। ये उनके घर की निगरानी के लिए गेट पे लगाया जाता था। बिल्कुल। अब हम चलते हैं तीसरे रूम पे। इनके घर के एग्जैक्टली 2 रूम मैं आपको दिखा चुका हूँ। तीसरे रूम पे जब हम आएंगे तो तीसरे रूम में कुछ और आपको भगत सिंह जी की अपनी फोटो और उनका चरखा जो है वो देखने को मिलेगा। और अब मैं चाहता हूं कि आप सूर्य जी थोड़ा सा आगे आएंगे, आपको एक बाल्टी और एक टब भी यहाँ से देखने को मिलेगा जिससे उनका नहाना होता था। ये आप मान के चलिए आज से 70 से 80 साल पुराना या 100 साल पुराना टब और बाल्टी अवेलेबल है। 70 से 80 साल पुराना ये टब अवेलेबल है, चरखा भी अवेलेबल है। और सामने कुछ और आपको चीजें देखने को मिलेगी जैसे तांबे के लोटे, तांबे का पानी देने वाला जो जार है वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो पीतल के। अब हम आ रहे हैं अपना चौथे रूम की ओर। ये है उनका भगत सिंह जी का 4th रूम, चौथा रूम। यहाँ पे भी माता जी द्वारा जिसपे वो लोग बैठते थे वो भी अवेलेबल है, जिसको चकला बोलते हैं आज की डेट में हम लोग, वो भी अवेलेबल है। चौकी, ठीक है, चौकी भी अवेलेबल है। उनके जो घड़े हैं वो भी अवेलेबल है पुराने। सारे के सारे बर्तन आज की डेट में आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये मानिए कम से कम 100 साल पुरानी मैं चीजें आज आपको लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उनके गिलास, बर्तन, कड़छी, बॉल, कौली और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल ये है। सारे वो बर्तन हैं जो भगत सिंह जी के द्वारा छुए गए हैं। ये वो बर्तन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सूरज जी, ये वो बर्तन है जो भगत सिंह द्वारा छुए गए हैं। इन पे उनकी माता जी ने उनको खाना परोस के दिया है और हम लोग धन्य हैं कि आज इन चीजों को हम देख पा रहे हैं। और हम चाह रहे हैं नेक्स्ट उनका जो अलग इधर कुआं, उनका जो कुआं है, अब तो जो बंद हो गया है, जो ये कुआं है, ये पहले इस कुएं से ही पानी लिया जाता था। अगर आप देखेंगे तो इस कुएं से पानी लिया जाता था और इसी कुएं के पानी से अपना स्नान, अपना जो पानी है वो ग्रहण करते थे। आज ये कुआं बिल्कुल सूख गया है। सूरज जी आप थोड़ा सा इसको नजदीक आके दिखाएंगे, बिल्कुल कुआं जो है सूख गया हुआ है, राइट। और सेफ्टी पर्पस के लिए इसको बंद भी कर दिया गया है। सेफ्टी पर्पस के लिए इसे बंद कर दिया गया है। तो ये इनका घर है, एक बार घर का प्लीज व्यू दे देंगे पूरा। ये घर है भगत सिंह जी का, जो कि डबल स्टोरी मान के चलो कि डबल स्टोरी है। यहाँ से ऊपर जीना भी है, सीढ़ियाँ भी है जहाँ से हम लोग अभी प्रवेश करेंगे। ये सीढ़ियाँ हैं, अगर हम यहाँ से आएंगे तो ये सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती है, छत की ओर। हम देखते हैं कि शायद हम लोग जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ऊपर से शायद बंद किया गया है, बिल्कुल जी ये बंद है। तो कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है या नहीं है। नहीं, इसे बिल्कुल बंद किया गया सेफ्टी पर्पस के लिए, बिकॉज ये बहुत पुराना घर हो चुका है और रिस्क एपेटाइट कैपेसिटी भी शायद इसकी कम हो गई है, तो इस करके प्रोबेबिलिटी कि इसे बंद कर दिया गया, राइट। अब हम आपको इनका जो डिफरेंट व्यू है एक और दिखाते हैं। भगत सिंह एक अपने में एक ज्वाला थी, राइट। आज हम भगत सिंह की बात करते हैं तो हमारे सीने में एक शोला सा उठता है, बिकॉज भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति हमें आज़ाद करवाने के लिए दी। वो चाहते तो वहाँ से भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने बम फेंक के ये जस्टिफाई किया कि वी आर द बेस्ट, वी आर द चैंपियंस, हम लोगों को कोई हरा नहीं सकता और हम लोग देश के लिए कुर्बान होने के लिए आए हैं। अभी ये जो पूरा घर मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा घर भगत सिंह जी का घर है। भगत सिंह जी ने माता भगत सिंह के माता पिता और भगत सिंह का जन्म इसी घर पे हुआ है। मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने शहादत दी, बलिदान दिया हमें आज़ाद कराने के लिए। आज खटकर कला का पूरा विलेज, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत भगत सिंह को उनकी कुर्बानी के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखेंगे तो सिस्टम ने बहुत अच्छा पार्क, शहीदी पार्क भी डेवलप किया। अगर ये देखेंगे सारा शहीदी पार्क है और ये सारे जो मेरे साथ जो लोग आए थे, मेरे साथ जो मेरे मित्र आए हुए हैं, वो लोग भी मस्ती कर रहे हैं, राइट। ये पूरा पार्क एक बार मैं चाह रहा हूँ आप प्लीज़ इन्हें दिखाइए, बहुत ही बेहतरीन पार्क है। ये सारे मेरे मित्र हैं, वेव करके चेक कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों को भगत सिंह का घर देखने को मिला।
आपको कैसा लगा भगत सिंह के घर जब आप अवेलेबल हुए आए तो कैसा आपको लगा, मुझे बताएंगे थोड़ा सा? बहुत ही बढ़िया हमें फील आया और जो सिंप्लिसिटी हमने इस घर पे देखी है तो उससे देख के हमें इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने सिंपल होंगे भगत सिंह और इतनी सिंपल सोच के बंदे और पूरा देश उनके साथ जुड़ा, पूरी देशभक्ति जिस तरह से कूट कूट के उनके पास भरी थी तो वो देख के तो बहुत हैरानी होती है मेरे को। जो आज का टाइम है, ऐसे टाइम में ऐसा बंदा पैदा होना, भगत सिंह बनना, दोबारा बनना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन जैसा ही है। डियर व्यूअर्स, इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जिस जगह पे हम आए हैं, पंजाब का एक छोटा सा शहर, छोटा सा गांव, पिंड ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ, ਮਤਲਬ ਪੁੰਗਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਪੁੰਗਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਗਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਪਸੰਦ ਦੀ, ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੀ बनना चाहता है, भगत सिंह वर्गा ही रहना चाहता है। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीद भगत सिंह जिन्हें 23 मार्च 1921 को 23 वर्ष 5 महीने और 23 दिन की आयु में ब्रिटिश सरकार द्वारा सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी की सजा दी गई। अगर भगत सिंह चाहते तो माफी मांगकर फांसी से बच सकते थे, लेकिन मातृभूमि की सच्चे सपूत को झुकना पसंद नहीं था कि अभियान की शुरुआत की थी। भगत सिंह का जब जन्म हुआ था तब उनके पिता सरदार किशन सिंह जी और उनके चाचा अजीत सिंह जी और स्वर्ण सिंह जी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर जेल में बंद थे। भगत सिंह के पैदा होने वाले दिन उनके चाचा को उनको जेल से रिहा किया गया था। इस बात से भगत सिंह के घर में बहुत ज़्यादा खुशियां हो रही थी। भगत सिंह पढ़ाई के लिए दूसरे सिखों की तरह लाहौर की ब्रिटिश स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार की शिक्षा बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दयानंद वैबिक हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई ली, जो कि आर्य समाज की एक संस्था थी। 1999 में जबकि वो 12 साल के थे, उस समय जलियांवाला बाग में हजारों बेघरों को लोगों की हत्या की गई थी। उनके दिमाग में ये बात इस तरीके से भर गई, इसीलिए उन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही अपने देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया था। वे हमेशा से ही गांधी जी के अहिंसक होने का विरोध करते थे, क्योंकि चौरी चौरा कांड में मारे गए बेकसूर लोगों के पीछे का कारण अहिंसक होना ही था। जब चौरी चौरा कांड हुआ था उस समय भगत सिंह जी स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो 50 किलोमीटर पैदल चल के वो घटना वाली जगह पे पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने जो देखा वो सचमुच बहुत ही दर्दनाक था। भगत सिंह ने उन शहीदों का बदला लेने के लिए ठान लिया और खून से सनी हुई मिट्टी मुट्ठी में भर के घर लेके आए। उसके बाद से ही भगत सिंह ने युवाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और
ना सुकून से जीना है, ना चैन से सोना है। बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। बचपन से ही कुछ अलग था हमारा भगत सिंह। एक दिन देखा मिट्टी में कुछ दबा रहा था। मैंने पूछा तो बोला, बापू इनकलाबी हो रहा हूं, धरती के अंदर पिस्तौल बो रहा हूं। एक बीज से हजारों बंदूकें जन्म लेंगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेंगी। मैं तभी जान गया था कि ये गुरु गोविंद सिंह जी का लड़ाका है। अकेला ही 1.25 लाख से लड़ेगा। सहरा बांध से घोड़ी नहीं, फंदा चूम के फांसी चढ़ेगा। और आज वो दिन आ ही गया। भगत देश के लिए कुर्बान होने के लिए आए हैं। सो अभी ये जो पूरा घर मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं, ये पूरा का पूरा घर भगत सिंह जी का घर है। भगत सिंह जी ने भगत सिंह के माता पिता और भगत सिंह का जन्म इसी घर पे हुआ है। सो मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने शहादत दी, बलिदान दिया हमें आज़ाद कराने के लिए। आज खटकर कला का पूरा विलेज, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत भगत सिंह को उनकी कुर्बानी के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखेंगे तो सिस्टम ने बहुत अच्छा पार्क, शहीदी पार्क भी डेवलप किया। अगर ये देखेंगे सारा शहीदी पार्क है। और ये सारे जो मेरे साथ जो लोग आए थे, मेरे साथ जो मेरे मित्र आए हुए हैं, वो लोग भी मस्ती कर रहे हैं, राइट। ये पूरा पार्क एक बार मैं चाह रहा हूँ आप प्लीज़ इन्हें दिखाइए। बहुत ही बेहतरीन पार्क है। ये सारे मेरे मित्र हैं, वेव करके चेक कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों को भगत सिंह का घर देखने को मिला। तो आपको कैसा लगा भगत सिंह के घर जब आप अवेलेबल हुए, आए, तो कैसा आपको लगा, मुझे बताएंगे थोड़ा सा? बहुत ही बढ़िया हमें फील आया। और जो सिंप्लिसिटी हमने इस घर पे देखी है, तो उससे देख के हमें इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने सिंपल होंगे भगत सिंह। और इतनी सिंपल सोच के बंदे, और पूरा देश उनके साथ जुड़ा, पूरी देशभक्ति जिस तरह से कूट कूट के उनके पास भरी थी, तो वो देख के तो बहुत हैरानी होती है मेरे को। जो आज का टाइम है, ऐसे टाइम में ऐसा बंदा पैदा होना, भगत सिंह बनना, दोबारा बनना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन जैसा ही है। डियर व्यूअर्स, इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जिस जगह पे हम आए हैं, पंजाब का एक छोटा सा शहर, छोटा सा गांव, पिंड ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ, ਮਤਲਬ ਪੁੰਗਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਪੁੰਗਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਗਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਪਸੰਦ ਦੀ, ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੀ बनना ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। शहीद भगत सिंह, जिन्हें 23 मार्च 1921 को 23 वर्ष 5 महीने और 23 दिन की आयु में ब्रिटिश सरकार द्वारा सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी की सजा दी गई। अगर भगत सिंह चाहते तो माफी मांगकर फांसी से बच सकते थे, लेकिन मातृभूमि कि सच्चे सपूत को झुकना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि जिंदगी तो अपने जम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो जनाजे उठते हैं। भगत सिंह की विचारधारा महात्मा गांधी से बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि अगर हमें आजाद होना है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। वो कहते थे,
जब शक्ति का दुरुपयोग हो तो वो हिंसा बन जाती है, लेकिन जब शक्ति का प्रयोग किसी सही कार्य को करने में किया जाता है तो न्याय का एक रूप बन जाता है। दोस्तों, उन्होंने लिखा है, मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें तो पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ। भगत सिंह का जब जन्म हुआ था तब उनके पिता सरदार किशन सिंह जी और उनके चाचा अजीत सिंह जी और स्वर्ण सिंह जी अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होकर जेल में बंद थे। भगत सिंह के पैदा होने वाले दिन उनके चाचा को उनको जेल से रिहा किया गया था। इस बात से भगत सिंह के घर में बहुत ज़्यादा खुशियां हो रही थी। भगत सिंह पढ़ाई के लिए दूसरे सिखों की तरह लाहौर की ब्रिटिश स्कूल में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार की शिक्षा बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दयानंद वैबिक हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई ली, जो कि आर्य समाज की एक संस्था थी। 1999 में जबकि वो 12 साल के थे, उस समय जलियांवाला बाग में हजारों बेघरों को लोगों की हत्या की गई थी। उनके दिमाग में ये बात इस तरीके से भर गई, इसीलिए उन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही अपने देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया था। वे हमेशा से ही गांधी जी के अहिंसक होने का विरोध करते थे, क्योंकि चौरी चौरा कांड में मारे गए बेकसूर लोगों के पीछे का कारण अहिंसक होना ही था। जब चौरी चौरा कांड हुआ था उस समय भगत सिंह जी स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो 50 किलोमीटर पैदल चल के वो घटना वाली जगह पे पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने जो देखा वो सचमुच बहुत ही दर्दनाक था। भगत सिंह ने उन शहीदों का बदला लेने के लिए ठान लिया और खून से सनी हुई मिट्टी मुट्ठी में भर के घर लेके आए। उसके बाद से ही भगत सिंह ने युवाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ज्यादा मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। जो नए व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट दें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टाइप का आप लोगों के लिए बनाऊं। सो अपनी जो इच्छा है वो प्लीज मुझे बताएं। आई डू इट फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।